Ruchi, only you and Sunny from 445 are attending classes. And there's Yes, one. ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Please switch on your cameras. We'll start the class. Switch on your cameras, everyone. Fast. In the last class, we were studying about types of recruitment. Okay. We studied two types of recruitment. One was, you start responding, all of you. Make this class interactive class. Don't make it a monologue. Tell me, क्या क्या टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट देखे थे हम लोग? मैम मैं अगली क्लास में एब्सेंट थी. Okay. Someone else? What were the types of recruitment? ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? लास्ट क्लास का तुम लोगों को पता नहीं है? एनीवन? Let everyone join. People are still joining. 1 minute. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I think most of you have joined. What I was asking is, what did we do in the last class? What are the types of recruitment? Tell me. Types of recruitment बताइए, क्या क्या होता है? Kaushal, what are the types of recruitment? मैम किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय Types of की रिक्वायर्ड recruitment. Only types of recruitment. कितना टाइप का recruitment होता है? ये बताओ. Switch on your cameras, everyone. Fast. Ma'am, 3 types of recruitment. What are they? 3 types. Can you name them? Ma'am, internal और inbound, outbound. दो टाइप का रिक्रूटमेंट होता है. वन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल इंटरनल. Okay. Internal recruitment means the recruitment which is from within the organization, and external का मतलब होता है the recruitment which is done from outside the organization. Okay, from within the organization and from outside the organization. Now, there are some recent trends in recruitment also that you can witness. There are some recent trends, बहुत recent, जिस तरीके से business change हुआ है. There are some recent trends in recruitment which are पोचिंग. पोचिंग समझते हो तुम लोग? पोचिंग या रीडिंग? नो मैम. No, ma'am. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर्स के की पर्सनल्स को, मतलब वैसे लोग जो उस कॉम्पिटिटर्स की कंपनी में कोई सब्सटैंशियल चेंज ला रहे हैं, उनके की पर्सनल को अटैक करता है, यानी कुछ अच्छा ऑफर देके किसी तरीके से अपनी कंपनी में शामिल करने की कोशिश करता है. when there's a competitor, when you are attacking on the key personals of your competitors, this is known as
raiding or poaching. You can see a lot of this happening in the IT companies. Okay, and this is an unethical practice. इसके ऊपर केस भी हुआ है, काफी कंपनीज ने एक दूसरे के ऊपर केस भी किया है. Fine. This is one of the recent trends. The other recent trend is e-recruitment. Okay, what is e-recruitment? बताइए क्या हो सकता है? What is e-recruitment? Through website www जैसे, या फिर और आप ये कर सकते हैं जैसे कि वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी. हाँ, वेब रिक्रूटमेंट इज नोन एज ई-रिक्रूटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, लिंक्डइन से भी रिक्रूटमेंट होता है, मालूम है आपको? Yes, ma'am. naukri.com से होता है, यस मैम. Yes, ma'am. monster.com में. ये सारी वेबसाइट्स पे क्या होता है? क्या आप खुद जाते हैं वहां पर? नो मैम. The job is posted. Okay, the job is posted and your skill set is matched according to the CV that you have posted for that job. और ये सारा कुछ जो है ई रिक्रूटमेंट में, कोविड के बाद ई रिक्रूटमेंट और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि the physical barrier that was there because of COVID and this pandemic led to more growth and more proliferation of this web-based recruitment. Okay? एक तीसरा ट्रेंड है आउटसोर्सिंग. व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग का मतलब है, जैसे आपने सुना होगा कि मैन पावर की कंसल्टेंसी होती है. यस मैम. Yes, ma'am. Okay, you must have heard about the consultancies, the manpower consultancies. वो आपको हर तरीके के लोग प्रोवाइड करते हैं. इसको कहते हैं काम को आउटसोर्स करना. फॉर एग्जाम्पल, सिक्योरिटी गार्ड्स की भी सिक्योरिटी का एजेंसी होता है ना. इफ यू वांट टू Yes, टेक ma'am. सिक्योरिटी गार्ड फॉर योर home or for your office or for that matter any other requirement, you go to that agency, they'll give you the manpower required, right? This is known as outsourcing. इसी तरीके से जैसे जो कंपनीज होती हैं, इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं, ये इन्वॉल्व होती हैं मैन पावर सप्लाई करने में. ओके, तो जो कंपनीज होती हैं, जैसे टीसीएस को हायर करना है, तो वो इन कंसल्टेंसीज को ये बोल के रखती है कि मुझे पाइथन में 15 साल का एक्सपर्टीज का एक बंदा चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए. नाउ you will submit your CV to that person, okay, and then there is a match between your skill set and the demand in market. Once that is done, you will be hired. लेकिन आपका जो रिक्रूटर होगा, आप उस कंपनी जैसे टीसीएस के एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे. आप किसके एम्प्लॉय कहलाएंगे? कंसल्टेंसी के. जितना जो पेपर वर्क होना है आपका, वो कंसल्टेंसी से होगी. आपकी सैलरी वो कंसल्टेंसी आपको देगी. Fine? Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now today we are going to start the new topic, which is selection. देखो, recruitment and selection पढ़ाए थे ना. Write down selection. First you write down the steps of selection. देखो, थोड़ा सा तो लास्ट क्लास में आई हैव टोल्ड यू ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. Yes, ma'am. Recruitment means going on adding as many number of applicants as possible from various sources, and selection means it is an elimination step. You start eliminating, that is the first step of selection. Now, recruitment is a positive process, but selection is a negative process. Okay, recruitment is a positive process because the number of applicants are increasing, and selection is a negative process. Selection का जो procedure होता है, वो organization to organization vary करता है. Fine. For some organization, the selection process, for small organizations, maybe it will be a small process. For bigger organizations, maybe it will be a
लॉन्ग प्रोसेस। ये पोस्ट टू पोस्ट भी वैरी करता है। क्या किसी क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस उतना ही टफ रहेगा जितना उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर का रहेगा? No, ma'am. No, But- ma'am. रहेगा? Manager There's का going to होता है। be a world of difference between the two. इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस का भी जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स जो होता है, वो वैरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी और पोस्ट टू पोस्ट भी। राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। लिखिए, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन will vary from organization to organization and even from department to department within the same organization. Within the same organization, according to the kinds of jobs to be filled. According to the kinds of jobs to be filled. The number of steps in the procedure In the procedure, ma'am. And the sequence of steps the number of steps and the sequence of steps also vary. जैसे आप देखेंगे, देखिए सिलेक्शन का मतलब समझिए। जैसे आप देखेंगे कि कुछ एग्जाम्स जो होता है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट करता है, पीटी कंडक्ट करता है, फिर मेंस कंडक्ट करता है, फिर इंटरव्यू कंडक्ट करता है, फिर मेडिकल कंडक्ट करता है और फिर वो सिलेक्शन देता है। होता है ना ऐसा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Document. एग्जाम्स कुछ पोस्ट ऐसा है जैसे कि पुलिस, उसमें मेडिकल एग्जाम का बहुत बड़ा रोल होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन का Yes, ma'am. Yes, ma'am. होता है ना? सो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड और कन्वेड कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी भी करता है और नंबर ऑफ स्टेप्स भी अलग होता है। अब आप एक लमसम, एक जनरल स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन लिखिए। ये स्टेप्स हम कहते हैं कि दीज आर द स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन। राइट ऑन द फर्स्ट स्टेप प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन करके लिखो। Preliminary interview. Next, number 2, receiving applications. Ma'am, repeat again. Preliminary interview. First उसके बाद step, मैम receiving applications. Application receive करना। Third, screening applications. Screening applications. Fourth, employment test. Fourth, employment test. टेस्ट मैम की दे Employment test. Okay. TEST test. Employment test. Next, employment interview.
Next, checking references. Checking references. Next, medical examination. Next, लास्ट में लिखिए फाइनल सिलेक्शन. फाइनल सिलेक्शन. देखिए जो स्टेप्स है जहां से स्टार्ट हुआ है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, वहां से लेके नीचे मेडिकल एग्जामिनेशन तक एक ब्रैकेट बनाओ और उसमें लिखो रिजेक्शन कैन बी डन इफ फाउंड अनसूटेबल. स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन से लेके मेडिकल एग्जामिनेशन तक रिजेक्शन कैन बी डन इफ फाउंड अनसूटेबल. Rejection can be done if found unsuitable. Done? मैम रिजेक्शन कैन बी फाइन क्या बोले हैं? रिजेक्शन हो सकता है, ये जो स्टेप्स है ना, ये नंबर ऑफ स्टेप्स में रिजेक्शन हो सकता है अगर अनसूटेबल हो, यानी अगर कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो इन स्टेप्स में रिजेक्शन किया जा सकता है. ठीक है? यस मैम. Now the first point. We will start with the first point. Okay? Preliminary interview. प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब होता है, देखो टोटली अनसूटेबल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिजेक्ट करने या उनको स्क्रीन आउट करने के लिए ये प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है. जो कि एकदम अनसूटेबल है, अनइंटरेस्टेड है, उनको जॉब से हटाने के लिए, ताकि टू हेल्प देम नॉट गेट इनटू दिस प्रोसेस. अननेसेसरी एम्प्लॉयर का भी टाइम जाता है और the employee will also lose unnecessarily. He'll have the hassle to go through the rounds of interview and go through all these rounds where the truth of the fact is he's neither interested nor he is suitable. Okay? Second, receiving applications. ये point आप लोग समझते हैं? रिसीव करना मैम एप्लीकेशन को. जितने लोगों ने एप्लीकेशन भरा वो एप्लीकेशन रिसीव होना. ठीक है? यस मैम. हाँ, दिस इज नोन एज रिसीविंग एप्लीकेशंस. देखिए जितने लोगों ने जो रिटन इंफॉर्मेशन होता है एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, दिस इज एप्लीकेशन क्यों भरवाया जाता है? क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉलम्स होता है, जैसे आपकी एज का ट्रूथ, आपकी क्वालिफिकेशन का ट्रूथ, आपके एक्सपीरियंस का ट्रूथ. ओके, फॉर दैट मैटर इवन द रेस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट्स. तो वैसी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन भरवाया जाता है which is of great use when you talk about the interview round. अगर वो कैंडिडेट स्क्रीन होकर के पहुंचता है इंटरव्यू राउंड में तो इंटरव्यूअर्स के लिए वो इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल हो जाता है उस वक्त. What is the next step? Screening of applications. Screening of और इस स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस से ही आपने पॉइंट दे करके स्टार्ट किया है कि द स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस का क्या मतलब है कि यहाँ से रिजेक्शन प्रोसेस किया जा सकता है. यहाँ से द रिजेक्शन प्रोसेस कैन बी डन. Getting my voice? Yes, ma'am. Network yes is ma'am. मैम प्रॉब्लम कर रहा है. Yes.
स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस यानी आप लोगों ने एप्लीकेशन भरा, अब यहाँ से सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. Suppose you have not filled the application according to the guidelines which were provided to you. जब भी किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो उसके साथ उस फॉर्म को फिल करने के लिए भी डिफरेंट गाइडलाइंस दी जाती हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपने नहीं, जैसे कि फोटो का एक प्रॉपर साइज है, वो फोटो जब तक साइज का नहीं होगा तब तक वो एप्लीकेशन में इनपुट नहीं लेगा. लेकिन अगर उस फोटो में ये लिखा है कि यू शुड नॉट वेयर स्पेक्स, यू शुड नॉट वेयर कैप्स, यू शुड नॉट यू शुड नॉट डू सर्टेन थिंग, योर बैकग्राउंड शुड बी इन अ सर्टेन वे. अगर आपके सिग्नेचर में, आपके डिक्लेरेशन में ये लिखा हुआ है कि इट शुड नॉट बी ब्लर्ड, इट शुड बी लेजिबल, इट शुड बी इन योर ओन हैंड राइटिंग, you should not write declaration in capital letters ever, but if you do not pay attention to it and upload it, तो एप्लीकेशन के टाइम पे ये चीजों का स्क्रीनिंग हो जाता है. अंडरस्टूड? मैम बीच में आपका आवाज नहीं आ रहा था. No, I didn't say anything. I know that network is troubling today. Then you have the employment test. ओके किस किस टाइप के टेस्ट के बारे में तुम लोग जानते हो, ये बताओ जरा. मेडिकल टेस्ट में मैम. पर्सनालिटी फिजिकल टेस्ट मैम. ठीक है, मेडिकल जानते हो, फिजिकल टेस्ट जानते हो, और फिटनेस टेस्ट मैम. दैट इज द सेम थिंग. पर्सनालिटी टेस्ट हो जाएगा मैम. क्या? पर्सनालिटी. वेरी गुड, पर्सनालिटी टेस्ट. हाँ, क्वालिफिकेशन टेस्ट मैम. नहीं, क्वालिफिकेशन का ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है. मैम रेटिंग मैम होता है ना. रिटन और ओरल. वो हाँ ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में वो सब आता है, लेकिन उसके अलावा आप लोग कितना टेस्ट जानते हैं? जैसे इसने बोला अभी कि पर्सनालिटी टेस्ट. कम्युनिकेशन टेस्ट भी हो सकता है. मैम कल्चर टेस्टिंग. कल्चर No, टेस्टिंग no. देखो, जैसे कि जिसमें एग्जाम आईक्यू टेस्ट सुने हो, यस मैम. आईक्यू Yes, टेस्ट. ma'am. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आता है ना सब मैम. इंटेलिजेंस. एप्टीट्यूड टेस्ट सुने हो, यस मैम. एप्टीट्यूड टेस्ट. यस यस मैम. मैम. यस मैम. यस मैम. उसके अलावा प्रोफिशिएंसी या ट्रेड टेस्ट सुने हो. यस मैम. ट्रेड टेस्ट सुने हैं मैम. ट्रेड टेस्ट का कोई एग्जांपल दे सकता है हमको? टाइपिंग का टेस्ट मालूम है कि बहुत जगह टाइपिंग का टेस्ट होता है, यस Yes, मैम. ma'am. टाइपिंग टेस्ट होता है यस मैम. मैम. वही होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट. मशीन ऑपरेटर के लिए मशीन चला के दिखाना जरूरी होता है, यस. यस. यस मैम. मैम. ये होता है ट्रेड या प्रोफिशिएंसी टेस्ट. पर्सनालिटी टेस्ट देखो, आईक्यू टेस्ट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करती हैं. ठीक है, दोज ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली they have come out with their own algorithmic tool to judge your IQ, because at the end of the day they believe that it is not the aptitude test which is going to help you, but rather the IQ of the person that is going to prove whether that person is going to be useful for the organization or not. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बहुत तरीके का होता है, फिजिकल है, मेंटल है, किसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जैसे ट्रेड टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट. अभी बताया ना, ट्रेड टेस्ट या प्रोफिशिएंसी यानी आप अपने स्किल में कितने प्रोफिशिएंट हैं या आप अपने काम में कितने अच्छे हैं. For this you will have to appear for a test which is trade or proficiency test. Okay, यस मैम. now एप्टीट्यूड टेस्ट मालूम है लोगों को यहाँ पे? वही मैम मैथ्स में जो होता है. हाँ ठीक है, वेरी गुड. एप्टीट्यूड टेस्ट उसको कहते हैं. ज्यादातर एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है. यस मैम. क्यों लेता है, क्या कारण है टेस्ट लेने का, ये बताइए. मैम मैम उससे माइंड तेज होता है, हम लोग क्वेश्चंस जैसे करते हैं ना उस टाइप के, तो इससे माइंड भी ग्रोथ होता है थोड़ा. ठीक है, देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट में जैसे आप मोस्टली एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ऐसा ही होता है, करंट अफेयर्स ma'am. होता है. इसमें क्या देखा जाता है कि देखिए सॉल्व कुछ क्वेश्चंस होता है जो आपको घर में बनाने दिया जाएगा, तो आप आधे घंटे में वो क्वेश्चन बना जरूर देंगे,
लेकिन एग्जाम में जब एक क्वेश्चन पे 3 मिनट या 4 मिनट भी नहीं होता है, तब बनाना इज द रियल गेम, राइट? यस मैम, जल्दी बनाना पड़ता है। जल्दी बनाना होता है और करेक्ट बनाना होता है। तो ये माना जाता है कि इस तरीके का जो आदमी एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहा है, उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, पहले से ही सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ का स्कोप प्रेजेंट है। यानी तुम मान लो कि बैंक पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो और तुमको एप्टीट्यूड टेस्ट दिलवाया जा रहा है, देके Yes, जाते हो। उस एप्टीट्यूड टेस्ट में उस एप्टीट्यूड टेस्ट में तुमको रियल वर्क प्लेस पे तो नहीं देखा जा रहा है। यस मैम, नहीं देखा जा रहा है। Nobody is actually watching you at the real workplace कि आप कैसे काम कर रहे हैं। All that they get to see is कि आपको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। एग्जाम को इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, डिजाइन किया जाता है कि दे विल take out that much of efficiency from you as much as is required for you to work at the workplace. Okay, यस मैम। ये होता है proficiency aptitude test. Proficiency test I have told you. Can you get my voice?